Okay, see the thing. Classful addressing, classless addressing, whenever I am doing, see. Oh, not this part. Wait. Is it visible? Hello? Is this visible? Yes, sir. ये network layer Yes, visible, sir. logical addressing visible. Yes, sir. See, यहाँ पे these are the thing. First address ये हम लोग कैलकुलेट किए कर चुके हैं. First address, see here, AND operation, first address, याद आया? Yes, sir. So these are the thing. First address कैलकुलेट करने के लिए हम लोग AND operation करते हैं must के साथ. Okay, so these are the thing. This particular calculation we have to do that one also. There also, see, there also that particular thing. See this same operation. इसके साथ इस IP address के साथ इसका अगर mask का AND operation करेंगे, I got this first IP address. So that is your network ID. That ID we have इस network से हम लोग जुड़े हुए हैं इस M0, M1, M2 and इसके through. So this thing I have to perform in routing table. See the thing. Very carefully try and understand. 26, see this here. M0. Is M0 is the port. Sorry, 26, okay. 26. Here, 26 is the mask. Then network ID is this. See, 26 is the mask. Network ID is this. That is the thing in routing table. Routing table ये बना रहे हैं हम लोग. Routing table बना रहे हैं उसका. 26 is the mask. /26 is the mask. This is the network ID. And next hop क्या है? अगर इसको यहाँ से भेजना है, next hop क्या है? कुछ नहीं है, dash. Getting my point? देखो 26 ये नेटवर्क आईडी है, नेक्स्ट हॉप कुछ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है ये. एंड किस पोर्ट के थ्रू जाएगा? दैट इज M2 इंटरफेस. M2. दैट द सिंपल थिंग डन इन राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल में ये सिंपल इंफॉर्मेशन तुम्हें देना पड़ेगा. सो हियर सी, इसके लिए जब करेंगे ना, one thing you have to understand very clearly, you have to understand, इसका रीजन तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ऐसे ही होगा. जो मास्क सबसे बिगेस्ट होगा, जो मास्क सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगा, उस मास्क को पहले एंट्री दिया जाता है इन फर्स्ट, वो एंट्री होगा इन राउटिंग टेबल. दिस इज सॉर्टेड ऑर्डर. That is most interesting. That is in sorted order. Please try and understand. This 26, then 25, then 24, then 22. This is in sorted order. Please try and understand this one. ये must sorted order में होगा routing table के अंदर. This thing you have to be very clear. You have to give this thing very sorted order, in sorted order. So randomly हम लोग नहीं घुसा सकते हैं, ये sorted order में ही हम लोग routing table पे देना पड़ेगा. ये इसका रीजन है कुछ, इसका रीजन मैं आऊंगा थोड़ा देर में ही, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ये sorted order में होगा, मास्क sorted order में ही होगा इन राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल में ये sorted order में तुम्हें देना पड़ेगा. तो these are the routing table for this network. तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क का जो भी यहाँ पे नेटवर्क आईडी है, दैट नेटवर्क आईडी. सो यहाँ से देख के तुम खुद बोल सकते हो कि दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज द सबनेट मास्क.
सो अगर हम लोगों को वही देना है तो डायरेक्टली यही दोगे, नेक्स्ट होप इज डैश एंड इंटरफेस इज M2, सो M2 से ये कनेक्टेड है। जब उसके बाद कौन सा एंट्री होगा, ये वाला एंट्री होगा। सो /26 इज द /25 इज द मास्क, देन दिस इज द नेटवर्क आईडी 128, दिस इज द नेटवर्क आईडी। किसी नेक्स्ट होप कुछ नहीं है, इसका राउटिंग इसका नेक्स्ट होप कुछ नहीं है, सो M0 से कनेक्टेड है। सो दैट इज द थिंग इंटरफेस, सो देयर इट इज। Next this one, next this one, and for the rest of the world, please try and understand this. Here, rest of the internet, ये जो 4 नेटवर्क के बाहर अगर कोई डेटा आएगा, अगर ये 4 नेटवर्क के बाहर कोई भी नेटवर्क आएगा, नेटवर्क आईडी, these are the network ID, इससे जुड़ा हुआ है ये, इससे जुड़ा हुआ है ये। अगर इससे ये नेटवर्क आईडी कोई भी होगा, उसका नेक्स्ट होप ये होगा। These are the network ID, these are the ID for, these are the ID for, these are the thing any. This any is represented by 00 /0 0.0.0.0 any का मतलब 00 से रिप्लेस होगा, ये 0000 होगा। So these are the thing 00, and then next hope will be this one, next hope will be this one the router, this one, and किस पोर्ट के थ्रू जाएगा, M2 पोर्ट के थ्रू जाएगा। So these are the thing M2 पोर्ट के थ्रू ये जाएगा। So that the thing is extra, ये जो 4 चीज है, उसके बाद ये this is the routing table for R1, this is the routing table for R1 का routing table है ये। Am I clear? Am I clear this much? Very interesting this is. यस सर, एक स्क्रीन नहीं दिख रहा सर हमको। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके वन मिनट। अब सर लग रहा है मेरी तरफ से इश्यू है, फिर से ज्वाइन हो रहे हैं, बाकी लोग को दिख रहा होगा हो सकता है। बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके सॉरी सर, हम फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन करो, नॉट मिस। ओके, नाउ दिस थिंग, दिस कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, राउटिंग टेबल दिस। नाउ एग्जांपल 2, इससे तुम्हें पता चलेगा कि फॉरवर्डिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। इस एग्जांपल 2 से पता चलेगा फॉरवर्डिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। This example 2 tells how forwarding process will be done. So the forwarding process, if packet arrives at R1 in figure 22.6, please try and understand very carefully. If a packet arrives at R1 in figure 22.6 with destination address this, ये destination address के थ्रू R1 के पास एक पैकेट आ रहा है, R1 के पास ये पैकेट आ रहा है, दैट मीन्स ये डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। आप देखो उस पे जाओ, राउटिंग टेबल में जाओ, डेस्टिनेशन एड्रेस तुम लोग कॉपी में लिख लो प्लीज एवरीवन, अगर तुम्हारे सामने कॉपी है इसको लिखो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 180.70.65.140, दिस इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस, this is your destination address. Now we are moving towards this here. कैसे ये डेटा फॉरवर्ड होगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। डेस्टिनेशन एड्रेस उसको मिल गया, उससे वो क्या करेगा, फर्स्ट यहां पे जाएगा, यहां पे जाके देखा कि /26 में अप्लाई करता हूं उस पे, उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे, जो डेस्टिनेशन एड्रेस उसने दिया है उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे मैं /26 अप्लाई करता हूं। /26 मींस दिस इज द मास्क, तो ये मास्क मैं अप्लाई करता हूं। अब /26 में अप्लाई कर देने के बाद मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस, दैट मींस नेटवर्क आईडी। मैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क से, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से मैं कैलकुलेट करूंगा, बाय अप्लाइंग दिस मास्क I have to calculate the network address. नेटवर्क एड्रेस पहले कैलकुलेट किया गया, सी 26 से ये अप्लाई किया गया डेस्टिनेशन एड्रेस पे,
देन ये रिप्लाई मुझे मिला, ये मुझे उसका आईपी ये नेटवर्क आईडी मिला। ये नेटवर्क आईडी क्या उस नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है राउटिंग टेबल में? नहीं मैच कर रहा है, तो यहां डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इट विल गो टू द 25। सो ये कैंसिल। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। राउटिंग टेबल में गया, राउटिंग टेबल में जाने के बाद वो मास्क जो था, वो मास्क को पहले अप्लाई किया डेस्टिनेशन एड्रेस पे, कैलकुलेट किया नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस से मैच किया, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे मुझे मिल रहा है दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, तो दिस डज नॉट मैच, सो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड मास्क, यहाँ सेकेंड मास्क 25 पे जाएगा, 25 जाने के बाद फिर इसने यहाँ पे नेटवर्क आईडी कैलकुलेट किया, देखा यही नेटवर्क आईडी आ रहा है। अब इसके साथ मैच करो, देखो नेटवर्क आईडी से मैच कर गया है, यही नेटवर्क आईडी वहां पे भी आ रहा है। So that means I have to forward the data. I have to forward the data here. I have to forward the data in M3. M3 के पास ये डेटा फॉरवर्ड होगा, थ्रू M3 डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा नेटवर्क में, इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क सॉरी थ्रू M3, थ्रू M0 it will forward, हाँ through M0 it will forward to the this network address directly. So here it is, that is the thing. अब उसके बाद काम आएगा ARP का, इसके बाद काम आएगा ARP का। अब ये जो प्रोटोकॉल में मैंने जस्ट फॉरवर्ड कर दिया, दिस आर द फॉरवर्डिंग मेथड। अब वहां पे जाने के बाद वो क्या करेंगे, नेटवर्क आईडी से फिर क्या करेंगे, वो नेटवर्क आईडी को अपना मतलब वो ARP रिसीव करेगा, वो ARP रिसीव करने के बाद दैट ARP अगेन does the rest part, that means वो अपना क्या करेंगे, जो ARP इससे पहले मैं पढ़ाया था, वो जो पैकेट बनाएंगे, एक पैकेज बनाएंगे, पैकेज बना के पैकेज को मतलब पहले तो पैकेज को खोलेंगे, उसके बाद मेन डेटा को रिट्रीव किए, फिर पैकेज बनाया, जहां पे सेंड करना है वहां पे सेंड करेंगे। सो ये पार्ट हो गया ARP का, हो गया डन। then ARP will be applied. So that thing is, this is the forwarding technique it has. Again another उसी same example, forwarding process कैसे हो रहा है, another example। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज क्लियर कर लो इसको। एक IP एड्रेस, ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस दिया हुआ है, हाउ टू फॉरवर्ड, वही सेम टेबल में हम पहले 76 अप्लाई करेंगे, टेक द नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होगा। सेकेंड देन 25 से अप्लाई होगा, अगेन नेटवर्क आईडी से मैच नहीं कर रहा है, नेटवर्क आईडी पहले कैलकुलेट किया, अप्लाइंग हियर। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लाना है तुम लोगों को, यहाँ पे जो ये कैलकुलेट हो रहा है नेटवर्क आईडी, ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे वो इस मास्क को अप्लाई किया जा रहा है, नॉट कि इसको देख रहा है, नॉट कि ये नेटवर्क एड्रेस हम देख रहे हैं, नहीं। 26 अप्लाई होके उस पर्टिकुलर एड्रेस का, इस पर्टिकुलर एड्रेस का नेटवर्क आईडी हम कैलकुलेट करें, उसके बाद उस नेटवर्क आईडी से जो टेबल में नेटवर्क आईडी है उस दोनों का मैच किया जा रहा है, दैट इज द टेक्निक। सो यहाँ पे किया, रो 2 को कैलकुलेट किया बट नहीं होगा कुछ, बिकॉज मैच नहीं किया। उसके बाद फिर रो 24 लगाया गया, 24 लगाने के बाद वी गॉट दिस वैल्यू and that matches the network IP address, and then that means it will send that to the data to the ARP, उस particular data में उस particular port के through उस particular network ID पे data forward हो जाएगा। That's the simple technique done by in forwarding. Am I clear? Am I clear? Yes sir. Now again see this forward, this particular again destination address is this, R1 के पास पहुंचा है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा ये कैलकुलेट करेंगे हर एक, दिस टाइम मास्क विल बी अप्लाइड 1 by 1, ऑल द मास्क, एक भी नेटवर्क आईडी से ये मैच नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा बताओ, एक भी नेटवर्क आईडी से ये मैच नहीं किया, इंटरनेट पे भेज देगा, इंटरनेट पे भेज देगा, दैट इज द थिंग। यहाँ पे जैसे ये मुझे मिला, इस होप पे ये सेंड कर दिया, इस होप पे ये सेंड कर दिया थ्रू दिस,
इंटरनेट पे ये सेंड कर देगा। प्लीज आप अपना काम है, प्लीज आप देख लो कि कहाँ पे डेटा सेंड करना है, ये R1 का काम नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ दिस एनी। अगर इस पर्टिकुलर मैच में नहीं करेगा तो ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे वो डेटा सेंड करेगा। अब उसका काम, उसकी नेक्स्ट वाले का ये काम, इसका काम आएगा नेक्स्ट उसका। तो दैट इज द थिंग, फॉरवर्डिंग प्रोसेस। दिस इज एग्जांपल 4। नाउ एड्रेस रिग्रेशन। Very clearly you understand this. Address aggression. Address aggression का मतलब होता है कि हम पूरा चारों को, यहां पे सिंपली देखो, राउटिंग टेबल फॉर R1 का राउटिंग टेबल ये पूरा है। बट वन थिंग यू सी, पूरा लगातार है ये। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन 1 को 0 से 63 तक दिया गया है, 64 से बाकी 1727 तक ऑर्गेनाइजेशन 2 के पास है, 128 से 191 तक ऑर्गेनाइजेशन 3 के पास है, 192 से बाकी अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सो अब यहाँ पे सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर, यहाँ पे इस दोनों को देख के तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये लगातार है। तो हम R2 को, दिस इज एड्रेस रिग्रेशन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एड्रेस 1 में, R1 में चारों टेबल दे दिया गया, चारों ऐड किया गया है, बट इसको थोड़ा सा हम लोग घटाने का कोशिश कर रहे हैं R2 में। जब R2 का होगा, ये चारों का नहीं देगा, ओनली ये फर्स्ट का रखेगा, ओनली ये फर्स्ट का रखेगा। दिस इज द थिंग, एड्रेस रिग्रेशन। बट यहाँ पे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब ये 26 था बट यहाँ पे ये रखेगा 24। व्हाई? बिकॉज ये लेगा 0 to 192 से जहां तक वो हो रहा है 255 तक, वहां तक वो लेगा 255 तक, पूरा 0 से 255 पूरा ये लेगा। ये जब 24 बना दिया गया, दैट मीन्स ये टोटल नेटवर्क को सिंगल मान लिया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एड्रेस रिग्रेशन, एड्रेस एग्रेशन, सॉरी एड्रेस एग्रेशन। क्यों एड्रेस एग्रेशन? बिकॉज अब सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये इसके लिए ये सिंगल नेटवर्क मान के चल रही है, बिकॉज ये लगातार है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन, अगर लगातार नहीं होगा तो मैं एड्रेस एग्रेशन नहीं कर सकता। बट अगर इस तरह का अलग अलग नेटवर्क दिया हुआ है, बट अलग अलग नेटवर्क लगातार सारे आईपी एड्रेस वहां पे काम कर रहा है, then you can treat it as a single network। तो ये सिंगल नेटवर्क की तरह ये ट्रीट कर रहा है टोटल उसको सिंपली, और इसके लिए ये 24 बना दिया उसने। ये देखा कि अगर इसको रखेंगे तो ये लगातार हो रहा है, चारों वैल्यू में डालने से वजह से एक वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज जो टोटल ये चारों को ये इंक्लूड कर लेगा, टोटल ये चारों को इंक्लूड कर लेगा। बट ये पॉसिबल तभी है जब बीच में एक राउटर काम कर रहा है, बिकॉज इंटरफेस नहीं तो अलग अलग होगा, इंटरफेस नहीं तो अलग अलग होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली हियर। ये एग्रेशन टेक्निक तभी पॉसिबल है जब ये बीच में एक राउटर काम कर रहा है, बीच में एक राउटर काम कर, बिकॉज इसका पोर्ट तब सेम हो जाएगा, पोर्ट सेम हो जाएगा। अब इसका तो अलग अलग पोर्ट है ना, तो ये चारों अलग अलग ही तुम्हें रखना होगा। यहाँ पे मैं एड्रेस एग्रेशन नहीं लगा सकता, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर राउटिंग टेबल आई कैन टेक दिस एड्रेस एग्रेशन टेक्निक बाय अप्लाइंग द मास्क। ये मास्क को देखते हुए ये चारों को मैंने देखा, अरे ये चारों तो सेम लगातार है, तो उसके बदले हम मास्क को बदल देते हैं और सिंगल नेटवर्क मान के ये चल देते हैं। और जब भी यहाँ टोटल ये 0 to 22, 25, 255 तक जो भी आएगा वो सीधा की तरह देते हैं। अब R1 का काम है इसको अलग अलग करना। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एड्रेस एग्रेशन टेक्निक। एड्रेस एग्रेशन क्या किया? राउटिंग टेबल को थोड़ा छोटा बना दिया, राउटिंग टेबल को थोड़ा छोटा बना दिया फॉर दिस केस, अदरवाइज ये चारों रखना पड़ता है इसको। तो इसी यही वजह है जिसके चलते ये एड्रेस एग्रेशन टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। बट कब यूज कर सकते हैं? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। व्हेन बीच में एक राउटर काम कर रहा है
एंड एक राउटर से वो नेटवर्क सारे चार नेटवर्क अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और लगातार सारे एड्रेस वहां पे अवेलेबल है, तभी हम लोग एड्रेस एग्रेशन लगा सकते हैं। नाउ सी हियर इफ दिस थिंग कम्स, अब मान लो, सी वेरी केयरफुली, यहां पे क्या मैं एड्रेस एग्रेशन लगा सकते हैं? यहां पे क्या एड्रेस एग्रेशन लगाया जा सकता है? सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिर वेरी केयरफुली ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसके लिए ये 3 लगातार नेटवर्क यहां पे है, पूरा नहीं है, 255 तक नहीं है, 255 लास्ट वाला यहां पे है, लास्ट वाला यहां पे है। क्या मैं यहां पे एड्रेस एग्रेशन लगा सकता हूं? दिस थिंग, क्या मैं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय दिस सॉर्टिंग टेक्निक। मैं बोला था ये नेटवर्क सॉर्टेड होगा, ये जो मास्क होगा वो सॉर्टेड होगा। वही सॉर्टिंग जो किया जा रहा है, यही सॉर्टिंग थिंग कैन एक्चुअली गिव दिस सॉल्यूशन, दिस पर्टिकुलर थिंग सॉल्यूशन। देखो यहां पे ये जोड़ दिए, मतलब ये जो आईपी एड्रेस है वो यहां पे होना चाहिए था, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में के अंदर ही होना चाहिए था, बिकॉज I have included this much, that means total 0 to 255 total it is adding here, but उसको अलग से यहां पे भी लिखा गया है। That means जब ये चेक होगा फर्स्ट इट विल चेक ना, फर्स्ट इट विल चेक, दैट मीन्स ये इंक्लूड 2 times, दिस थिंग इज इंक्लूडेड 2 times, बट दिस थिंग इज इंक्लूडेड 2 times इन दिस टेबल। अंडरस्टैंड हो रहा है? क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा है? क्लियर अंडरस्टैंडेबल हो रहा है? यस नो? ये जो देखो चौथा वाला जो नेटवर्क था वो यहां पे ला दिया गया, यहां पे वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये यहां से यहां उठा के यहां ला दिया गया, दूसरा राउटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर मशीन में इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए क्या एड्रेस एग्रेशन लगा जा सकता है? यस, लगाया जा सकता है। Why? Because पहले जब यहाँ पे जाके चेक होगा, अगर पहले इस नेटवर्क का होगा तो इस नेटवर्क को पहले ही ये चेक कर ले रहा है, बिकॉज राउटिंग टेबल चेक होगा हमेशा शुरू से, पहले ये वाला से चेक कर लेगा ना। जैसे ये वाला चेक हो गया कि इधर नहीं जा सकता, इसके बाद फिर से अगर ये चेक कर भी लेगा कोई इशू नहीं है, बिकॉज अगर मुझे यहां सेंड करना था तो इसी से मुझे यहां सेंड मैं कर चुका हूं, यहां पे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट अगर यहां से यहां जाने का जरूरत पड़ रहा है, दैट मींस दिस मस्ट बी इन दिस बिटवीन दिस 3। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर नहीं है तो फिर से मैं समझाऊंगा। बोलो हाँ ना में जवाब चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं समझाऊंगा। सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, दैट्स गुड। नाउ सी वेरी केयरफुली ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये पिछले वाला जो था, ये एड्रेस एग्रेशन कब लगा रहे थे? जब यहाँ पे ये चारों टोटल थिंग इज इंक्लूडिंग है, सब चीज, इसको सिंगल नेटवर्क मान के डायरेक्ट यहाँ पे ये मास्क को खत्म करके डाल दे रहे थे राउटिंग टेबल में। अब इस नेटवर्क को, ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है, इस नेटवर्क को डिवाइड करके यहां से कट के वो दूसरा नेटवर्क में डाल दिया। सीधा थिंग यहाँ पे लगातार 3 है, ठीक है। इस राउटिंग टेबल में कोई इशू नहीं है, इस राउटिंग टेबल में भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो लगाया गया है वो अलग कर दिया गया है, ये जो पार्ट है लास्ट वाला वो अलग कर दिया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 4 अलग राउटिंग टेबल के साथ ये जुड़ा हुआ है। ना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क डोंट थिंक ये अदर 2 नेटवर्क्स के लिए है। डोंट थिंक वेरी मच। ये अदर 2 नेटवर्क हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। दिस इज अ थिंग। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मींस
ये अदर टू नेटवर्क का जो होगा वो यहाँ पे डाला जाएगा, दैट इज द इशू नहीं है। मेरा मेन इंफॉर्मेशन ये दो चीज चाहिए, सो दैट इज द थिंग। ये मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क को अलग कर दिया गया। नाउ इस नेटवर्क में, इस राउटिंग टेबल में क्या मैं एग्रेशन टेक्निक लगा सकते हैं? दिस इज द सेकंड वैल्यू, एग्रेशन टेक्निक लगा सकते हैं, बिकॉज एग्रेशन ये जोड़ देंगे, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने एग्रेशन लगा दिया, मतलब ये जो 192 से है ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। सिंपल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस मच, बिकॉज ये जो मैंने लगाया दैट मींस ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, उसी में चारों इंक्लूडेड है, बट अलग से इसको ये भी लिखा जाएगा। अब ये इसका ये प्रॉब्लम समझो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एग्रेशन लेने के बाद, एग्रेशन करने के बाद प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम आया कि ये नेटवर्क दो बार जुड़ गया है, एक अलग से ये जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ गया है, एग्रेशन लगाने के बाद ये इसमें भी ये जुड़ गया है। सो व्हाट हैपेंड देन? दैट मींस इस नेटवर्क में अगर कोई वैल्यू सेंड करोगे तो यहाँ ये जाएगा कि ये जाएगा, ये जाएगा कि ये जाएगा, दोनों में से कहां भेजेंगे? दोनों में ये इंक्लूडेड है। एग्रेशन लगाने के बाद इस पर्टिकुलर पार्ट में भी ये इंक्लूडेड है और इस पर्टिकुलर तो अलग से लिखा हुआ है ही। तो अब तुम बोलो किस में जाएगा? जब मैं मान लो इस नेटवर्क में मुझे डेटा सेंड करना है तो ये कौन सा फॉलो होगा? M1 में जाएगा सर। ऑलवेज M1 में। व्हाई? दैट थिंग इज सॉल्व्ड बाय दिस सॉर्टिंग। ये जो मैंने बोला था ना, मास्क सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, मास्क हमेशा बड़ा से छोटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ये जो सॉर्टिंग जो था, यही सॉर्टिंग टेक्निक जो इसमें ये सॉर्टिंग को अलग कर रहा है, दैट मींस ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर सॉर्टिंग ये 24 आगे ऊपर रहता, 24 ऊपर रहता तो पहले 24 को चेक करके ये मिल जाता तो यहाँ भेज देता, भेजना था इसको यहाँ, लेकिन उस डेटा को यहाँ भेज देता, 24 ऊपर रहता तो। बट इन दिस केस क्या होगा? अभी क्या होगा? पहले 26 को ही चेक होगा, देखेगा नेटवर्क आईडी मैच कर गया तो यहाँ डेटा भेजेगा, इसमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू चेक करने के लिए जा रहा है इस नेटवर्क सबनेट मास्क में, दैट मींस इस नेटवर्क में डेफिनेटली नहीं है, तभी यहाँ पे क्या है? यस सर। डेफिनेटली इस नेटवर्क में नहीं है। सो अब मैं यहाँ से देख के पता कर सकता हूँ कि यहाँ से ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भेज दो। सो कोई गलत नहीं भेजा गया, इसी नेटवर्क, तीनों नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं इसका होगा। इस नेटवर्क में डेफिनेटली ये नहीं है, बट इस नेटवर्क में अगर डेटा सेंड करना है तो पहले इसीलिए इसको चेक किया जा रहा है, M1 में डेटा सेंड करें तो ये गलत डेटा नहीं सेंड हो रहा है। दैट इज द थिंग सॉर्टिंग डज। सॉर्टिंग जो हम लोग किए थे 26, 24 दिन, ये जो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज किए थे, ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ। क्लियर? दैट मींस दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग। दैट मींस पहले जो लॉन्गेस्ट मास्क है उसको मैच करो, पहले जो लॉन्गेस्ट मास्क है उसको मैच करो। दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई दिस थिंग राउटिंग टेबल में सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, because longest mask matching will be the first one. Longest mask matching perform first one. पहले ये longest जो मास्क होगा उस मास्क को मैं पहले कैलकुलेट करूंगा नेटवर्क आईडी, ताकि ये गलती ना आए। If I use aggression technique, if I use aggression technique, that is the thing, aggression and longest mask matching. Here now the examples. This is the last example I think. Okay, अभी बहुत कुछ है। Okay, ये एग्जाम्पल तुम लोग खुद देख लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये इस एग्जांपल्स यहाँ पे जस्ट बोल दिया गया है कि कैसे इसको डिवाइड करोगे। ये डिवीजन कैसे दिया हुआ है कि आईएसपी कैसे ये डिवाइड कर रहा है, वो आईएसपी डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से ये डिवाइड होगा। एड्रेस को वो डिवाइड करेगा, ये 16 तो 16, 128, फिर 128, फिर 128, इसका 16 करके ये 4 तक 4 पार्ट होगा, ये 16 पार्ट होगा। सो दैट इज द थिंग, एलो आरजी
SORG, so यहाँ पे नाम दिया हुआ है, this is LORG, SORG. See, this is the first one, second one. So in this way, total thing is described here. This is very easy thing, you देख लेना in this example, but definitely देखना. Now we are moving towards the static routing and dynamic routing. स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग क्या होगा? राउटिंग टेबल अब क्या होगा? राउटिंग टेबल जो हम लोग रखेंगे, राउटिंग टेबल जो हम लोग रखेंगे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये राउटिंग टेबल में मैंने बोला था ये चार इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होना चाहिए. वन इज मास्क, सबनेट मास्क, एंड सेकंड वन इज नेटवर्क आईडी, थर्ड वन इज नेक्स्ट हॉप, फोर्थ वन इज इंटरफेस. ये चार चीज मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं. ये चार जो राउटिंग टेबल बनाएंगे, ये राउटिंग टेबल कैसे हम लोग बनाएंगे? दो तरीका है, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक. स्टैटिक मींस whenever I am going to install, I am going to configure this, at that time I will make that routing table. राउटिंग टेबल में बना के हर एक सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, हर एक सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे. दैट राउटिंग टेबल मैं दूंगा whenever we are trying to give the install this router or नेटवर्क को जब इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहा हूं मैं, उसी टाइम पे सारे मशीन का जो राउटिंग टेबल मैं मैन्युअली दूंगा. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग. एंड डायनामिक राउटिंग, यू नो दिस वन. डायनामिक राउटिंग मींस, इससे पहले भी मैं इसको कर चुका हूं. डायनामिक राउटिंग मींस whenever you send the data, अगर उस राउटिंग टेबल में नहीं है इंफॉर्मेशन, वो पहले उस इंफॉर्मेशन को पहले लिखेगा. ओके, ये नया सिस्टम में जा रहा है तो उसको ऐड कर लो राउटिंग टेबल में उसको ऐड कर लो. तो राउटिंग टेबल में वो दैट विल एडेड बाय whenever a new destination address and network address is coming. न्यू नेटवर्क एड्रेस जब भी आएगा, इट विल मैच दैट. कोई नेटवर्क आईडी से मैच नहीं कर रहा है, सो इट विल ऐड दिस नेटवर्क आईडी whenever you are making the dynamic routing. So that is the technique done in dynamic routing and static routing. Here it is always static routing is ideal and small network. Just for small network, बहुत small network है तो static ID तुम दे दो, and static routing will be the better one. static ID पहले से तुम अगर दे दोगे तो कोई एड्रेस, कोई चीज चेंज नहीं होगा. डायनामिक राउटिंग सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स. डेफिनेटली जब बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, मैं मैन्युअली देने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैन्युअली देने का बहुत टाइम लग जाएगा. सो ऑटोमेटिकली यू अपडेट योर राउटिंग टेबल. Simple. Configuring static router involves less cost and can be easily maintained by the network administrator because you know everything. You have installed that. But this is थोड़ा सा handling tough है और थोड़ा सा problem ये routing table करता है whenever you are trying to give dynamic routing table. Because simply try and understand, ये जो default part है, मतलब any के लिए मैं जो data send कर रहा हूँ, ये part dynamic table में नहीं हो सकता, डायनामिक राउटिंग में नहीं हो सकता. जब भी ये नया आईपी एड्रेस उसको मिलेगा, नया नेटवर्क आईडी मिलेगा, इट विल ऐड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. सो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इन डायनामिक राउटिंग. राउटर कैन नॉट बी चेंज्ड अंटिल ऑथराइज्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. सो दैट इज द थिंग आई हैव टोल्ड. सो उस नेटवर्क के बाहर कोई नहीं जा सकता. कोई मशीन उस नेटवर्क के बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज योर आईपी एड्रेस is fixed. You have given that fixed. So router को change करोगे तो फिर से तुम्हें कॉन्फ़िगर करना होगा static routing. But this cannot happen in dynamic routing. Routing protocol finds the router and traversing the packets. जब भी ये traverse होगा पैकेट, वो अपने आप को approve कर देगा. So कोई यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है डायनामिक राउटिंग. Routers are not updated dynamically in the routing table, hence cannot detect inactive routers. So that means ये dynamically कुछ नहीं होगा. So ये inactive जो routers काम नहीं कर रहा है उसको भी detect नहीं कर पाएगा. खराब हुआ है या नहीं खराब हुआ है हम लोग पता नहीं कर सकते, but ये पता किया जा सकता है for using dynamic routing. But dynamic routing is very complex. That is the thing you must tolerate. This is the static and dynamic routing. So routing table में अब ये तीन पार्ट एक्स्ट्रा आया है, that is flag, reference count, use. Please try and understand. ये चार चीज तो मैंने समझा चुका हूँ.
ये इंफॉर्मेशन जनरली रहता है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कॉमन फील्ड्स ऑन राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में जनरली ये 3 चीज भी रहता है। अब ये 3 चीज का काम देखो, फ्लैग्स का काम देखो। सी यू फ्लैग इंडिकेट्स, यू फ्लैग, जब फ्लैग आएगा, फ्लैग टाइप में यू दिखेंगे, दैट मीन्स राउटर इज अप, दैट मीन्स राउटर इज कमिंग, राउटर इज रनिंग, राउटर इज नॉट इनएक्टिव। यू मीन्स राउटर काम कर रहा है सिंपली। जी मीन्स जब भी यू बदल जाएगा तो यू मस्ट हैव, दैट मीन्स योर पैकेट कैन नॉट बी फॉरवर्डेड, पैकेट वहां पे काम ही नहीं करेगा बिकॉज वो तुम्हारा राउटर ही गलत है। दैट इंडिकेट्स दिस राउटर खराब है या अच्छा। जी फ्लैग मीन्स डेस्टिनेशन टू अनदर नेटवर्क। जी मीन्स मुझे डेस्टिनेशन दूसरा नेटवर्क पे है, सिंगल नेटवर्क पे नहीं है। सो जी का मतलब होता है, जी अगर नहीं रहता है उसमें, जी अगर नहीं रहेगा दैट मीन्स नेटवर्क उसी नेटवर्क के अंदर है, मुझे वहां पे भेजने का जरूरत नहीं, आई कैन सेंड डायरेक्टली। दैट इज द मीनिंग ऑफ जी। जी इंडिकेट, these are the flag fields, controlling fields. So H means host specific. Host specific, you are doing routing table for host specific. D means redirection. Redirection means मैं गलत जगह पे भेज दिया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था। रीडायरेक्शन मीन्स गलत राउटर पे भेज दिया, वो राउटर क्या करेगा, ओके आप मुझे भेज दिए हो तो वो चीज क्या करेगा, एक राउटर उस राउटिंग टेबल में उसको ऐड करेगा कि हाँ ये गलत आ जाएगा तो मुझे इसमें इसको भेजना है इसी वे से, तो उसको ऐड करेगा, गलत आया है तो बट फिर भी वो ऐड करेगा, ऐड करके ये भेजेगा, दैट इज द डी, एडेड बाय द रीडायरेक्शनल। और एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, सो दैट मींस गलत आया था इससे पहले, फिर से एक को गलत आया बट मॉडिफाई कर देंगे, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मॉडिफाई कर देंगे। These are the flag fields is have, that means for controlling part this flag field are using reference count. Reference count means please try and understand, reference count that means कितने जगह से ये घूम के आया है, कितना जगह से ये घूम के आया है, कितना कितना पोर्ट होके ये आया है, दिस इज रेफरेंस काउंट। दैट इज 1 2 3 4 5 6, अगर 5 दिया हुआ होगा दैट मींस 5 पोर्ट घूम के ये पहुंचा है मेरे पास, दैट इज रेफरेंस काउंट। यूज का मतलब हुआ कि कितना कितना यूज, कितना फील्ड है पूरा राउटिंग टेबल में, दैट मींस ये राउटिंग टेबल में, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये राउटिंग टेबल एक एट द टाइम उस होस्ट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उस होस्ट एट द टाइम कितना राउटर से कनेक्टेड है, दिस इज द यूज। एक होस्ट पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टाइम में कितना नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है, दैट इज द थिंग यूज टेल्स। These are the common fields a routing table have. इससे ज्यादा भी हो सकता है but these are the not meaningful for you. So up to this is your class. Next day we will start route.